A very warm welcome to everyone. This is Professor CMA Nikunj Dholakia at your service. Friends, this lecture is going to be very interesting, guys. I'm going to teach you one of the so-called difficult topics, fixed overheads variances, but I'm going to teach you with the help of a trick. Believe me, एकदम easy trick है. You will get the answer very fast. Therefore, I am not going to say any logical or conceptual thing. Okay? It's going to be pure trick. If you want the concept of fixed overheads, you need to see my video of fixed overheads part 2. ये मैं खाली ट्रिक बताऊंगा and believe me, you must have never ever seen such a trick. Okay? Now, see here. 2 questions I'm going to solve in 15 minutes time. And one of my student requested, sir, please take up the material, institute material question. I said, why not? So this is question number 7 on page 13.34 of the CA material. Okay? So student ने कहा, please ये सिखाओ. So today I'm going to teach you this with simple trick. In this question, number of days is not given. Meaning, calendar variance वाला ये sum नहीं है. Question number 2 I am going to take, which will be calendar variance. But in this question, number of days are not given. Okay, what is given in the question? Let's see. Budgeted, overheads, rupees, actual overheads in rupees, production in units. Standard time for one unit is 2 hours. Budgeted or standard 1 unit is 2 hours. Actual hours worked is 16,000 hours. Calculate the fixed overheads variances. So here I start, my friends. First of all, part 1 हमें क्या करना है? पार्ट 1 में देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट RPU, दैट इज रेट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर यूनिट. सो जो आपका बजटेड ओवरहेड्स है उसको आप बजटेड यूनिट्स से डिवाइड करोगे, बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट पर यूनिट. सो बजटेड ओवरहेड्स इज 15 lakhs. हियर इट इज, सी हियर. Divide by budgeted units 7,500. So rupees divide by units. 200 rupees का RPU आया, rate per unit. Okay. तो working note number 1, find out rate per unit. Working note number 2, find out rate per hour. Here you divide by units. Here you have to divide by hours. Budgeted overheads upon budgeted hours. So budgeted overheads is 15 lakhs and hours is 15,000 hours. Budgeted hours is 15,000. कहाँ से आया? ये देखो, ये budgeted है, budgeted है. 1 unit 2 hours. So 7,500 units. How many hours? तो वर्किंग नोट 1 बहुत सिंपल है. रेट पर यूनिट, उसमें बजटेड डेटा लेने का. Whenever you calculate rate, it will be per unit. It will be budgeted. RPU कैलकुलेट करो, RPH कैलकुलेट करो. RPU multiply by actual units. Rate per unit multiply with actual units. Actual units कितना है? Actual units देखो इधर 7,800 units है. Multiply by rate per unit, और you can say multiply by working note 1. 15,60,000. इसको हम नाम देंगे recovered overheads. Recovered overheads. दोस्तों थोड़ा रुकिए, 2 मिनट में सम खत्म हो जाएगा. ये वर्किंग पहले करना पड़ेगा. रिकवर्ड ओवरहेड्स. हाउ टू फाइंड आउट रिकवर्ड ओवरहेड्स? एक्चुअल यूनिट्स इनटू RPU. देन यू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स. उसमें एक्चुअल आवर्स लेने का. इधर एक्चुअल यूनिट्स था, इधर एक्चुअल आवर्स है. ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक RPH. अगर यूनिट्स है तो RPU, आवर्स है तो RPH. सो एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स देखो, एक्चुअल आवर्स 16,000 इंटू RPH. RPH बोलो या वर्किंग नोट 2 बोलो. सो हमारा रिकवर्ड ओवरहेड सामने है, हमारा स्टैंडर्ड ओवरहेड सामने है. कैसे कैलकुलेट करने का एक बार वापस से बता दूं.
फाइंड आउट आरपी यू मतलब डिवाइड बाय यूनिट्स करो और फिर यहां पे एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करो. आरपीयू मल्टीप्लाई विद एक्चुअल यूनिट्स दैट विल गिव यू रिकवर्ड ओवरहेड्स. RPH hours multiply with actual hours that will give you standard overheads. So recovered overheads is working note 3, standard overheads is working note 4. Now धमाल देखो दोस्तों, just see the धमाल, just see the धमाल. पार्ट 1 में हम लोग ने वर्किंग नोट कैलकुलेट किया. अभी पार्ट 2 बहुत सारे बार है तो मैंने बार्स लिख दिया. BARS बजटेड ओवरहेड्स गिवन इन द क्वेश्चन. कहाँ है सर? ये रहा, बजटेड ओवरहेड्स गिवन इन द क्वेश्चन. A फॉर एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन इन द क्वेश्चन. सर कहाँ है? ये है. रिकवर्ड ओवरहेड्स वर्किंग नोट 3, ये रहा. वर्किंग नोट 3 हम लोग ने जो किया वो 1560 एंड वर्किंग नोट 4 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स. देखो ये रहा 16 lakhs. पार्ट 2 इज डन. बार्स लिख देने का और यहां पे ABCD करने का. ABCD बार्स लिखने का. बजटेड एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है, रिकवर्ड एंड स्टैंडर्ड वर्किंग नोट 3 और 4 हो गया. अच्छा, अभी पार्ट 2 के बाद पार्ट 3. सबसे पहले वॉल्यूम वैरिएंस ढूंढने का. देखो डायलॉग क्या दिया है. CA बनना है, CMA बनना है, CS बनना है तो वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा. CA बनना है, CA तो वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा. सो वॉल्यूम वैरिएंस इज CA, C माइनस A. इधर देखो, इधर मैंने नंबर दिया है ABCD. सो C माइनस A, जो भी फिगर है वो लिख लेना. C माइनस A, तो C इज 1560, दिस इज 15 lakhs. पॉजिटिव आंसर है तो फेवरेबल. सो सबसे पहले वॉल्यूम CA, वॉल्यूम CA, वॉल्यूम CA बनना है तो वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा. और उसके बाद EC एक्सपेंस कॉस्ट एफिशिएंसी कैपेसिटी. एक्सपेंस कॉस्ट एफिशिएंसी कैपेसिटी. और वो कैसे याद रखने का मालूम है? ABCD A माइनस B, ये आएगा पहला वाला. B माइनस C दूसरा वाला आएगा. C माइनस D तीसरा वाला आएगा. सर और कैपेसिटी के लिए तो वापस ऐसे चले जाओ, D माइनस A. आप ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम इज CA, वॉल्यूम इज CA मतलब ये, हाँ बार्स है ना, बार्स उसको ABCD रख दिया, बार्स को ABCD रख दिया. फिर पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करो CA, फिर EC एक्सपेंस कॉस्ट एफिशिएंसी कैपेसिटी. A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, D माइनस A. चलो A माइनस B क्या है? A माइनस B फिगर्स खाली देखो ना, 15 और 1560, 60,000 एडवर्ड्स. हाँ, खाली कॉस्ट में उल्टा होता है. पॉजिटिव आंसर ये मेथड में, ये टेक्निक में कॉस्ट में उल्टा होता है. पॉजिटिव आंसर इज एडवर्स एंड नेगेटिव आंसर इज फेवरेबल. चलो B माइनस C करते हैं. ये देखो, ये B है, ये C है. खैर ये सब में तो 0 आ गया, लेकिन कॉस्ट में उल्टा. मैंने नोट भी दिया है. पॉजिटिव आंसर इज F, नेगेटिव आंसर इज A, बट फॉर कॉस्ट वैरिएंस इट इज उल्टा. एफिशिएंसी इज C माइनस D, ये C है, उसमें से D निकाल दो. 1560 माइनस 16 ये आ गया. D माइनस A, D माइनस A 60 हो गया. सम इज डन. 5 वैरिएंस हो गया. सबसे पहले वॉल्यूम करो CA, सबसे पहले वॉल्यूम करो CA, फिर EC एक्सपेंस कॉस्ट एफिशिएंसी कैपेसिटी. ABC CD DA खाली कॉस्ट वैरिएंस में उल्टा है. सो सम इज डन. क्रॉस चेक हमारे पास है. कॉस्ट इज एक्सपेंस प्लस वॉल्यूम. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. एंड वॉल्यूम इज एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी. ये नंबर ऑफ डेज वाला नहीं है, कैलेंडर नहीं है. चेक कर लेना, मैच हो रहा है. वी आर डन विथ फर्स्ट क्वेश्चन. ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है.
दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सीए मटेरियल, पेज नंबर 13.37. नंबर ऑफ डेज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन यूनिट्स इज गिवन, वर्किंग डेज आर गिवन, आवर्स आर गिवन, रुपीज इज गिवन. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. चलो अपना यूजुअल मेथड चालू कर लेते हैं. वर्किंग नोट 1, पहले आरपी यू ढूंढो, फिर आरपी एच ढूंढो, फिर ये जो यू है उसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ये जो आरपी एच है उसको एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करो. जब ये रेट ढूंढते हैं ना खाली बजटेड लेने का, ये देखो खाली बजटेड, बजटेड, ये फिक्स ओवरहेड है 4 lakhs डिवाइड बाय 4000 आरपी यू आएगा, फिर 4 lakhs डिवाइड बाय 8000 आरपी एच आएगा. उसको एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करो जस्ट एज इन द लास्ट सम. अगर आप एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिकवर्ड ओवरहेड्स थर्ड, उधर भी रिकवर्ड ओवरहेड्स था, वर्किंग नोट थर्ड, वर्किंग नोट 4, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करो ये रेट को, ये रिकवर्ड आ गया. ये एक एक्स्ट्रा है. अगर डेज दिया है क्वेश्चन में तो ये एक एक्स्ट्रा है. अगर डेज क्वेश्चन में दिया है ना तो ये एक्स्ट्रा है. क्या एक्स्ट्रा है जरा देखते हैं हम लोग, एक मिनट. ब्रो कैलकुलेट करने का, ब्रो बजटेड रिवाइज्ड ओवरहेड्स. ब्रो 20 डेज में 4 लाख का ओवरहेड्स था, 20 डेज में 4 लाख का ओवरहेड्स था, तो 21 डेज में कितना ओवरहेड्स? खत्म, 4,20,000. बजटेड रिवाइज्ड ओवरहेड्स, डेज और ओवरहेड्स. वर्किंग नोट 3 इज सेम, वर्किंग नोट 4 इज सेम. एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट, 20 दिन में इतना खर्चा तो 21 दिन में कितना खर्चा. ये रहा देखो, 20 दिन में इतना खर्चा तो 21 दिन में कितना खर्चा. ओके, 1 2 3 4 5, 5 के एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया ब्रो. अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी मजा देखो. उधर हम लोग बार्स लिखते थे, ए बी सी डी, खाली डी तक था बार्स. अभी एक नया आ गया ब्रो. अच्छा, बजटेड और एक्चुअल क्वेश्चन में दिया होगा. रिकवर्ड इज वर्किंग नोट 3, स्टैंडर्ड इज वर्किंग नोट 4, ब्रो इज वर्किंग नोट 5. ये सब लिख दिया, खत्म. पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करो, वॉल्यूम सी ए, फिर उसमें ईसी ईसी था ना, इसमें कैलेंडर भी आ गया तो ईसी ईसी सी, ईसी ईसी सी, कैलेंडर लास्ट में लिख देने का. बाकी सेम है, ए बी बी सी सी डी डी ई ए, इसमें ई तक जाता है स्टोरी. तो ए बी बी सी सी डी डी ई और लास्ट में ई ए. इतना सिंपल मेरे दोस्तों, यू कुडंट हैव ड्रीम्ड इवन ऑफ सच अ थिंग. इट इज सो सिंपल गाइस, सो सिंपल. बस इतना याद रखने का कि कॉस्ट वैरिएंस में उल्टा होता है, कॉस्ट वैरिएंस में उल्टा होता है. पॉजिटिव आंसर को एडवर्स बोलने का. चलो करें. वॉल्यूम इज सी माइनस ए, ये सी है, ये ए है ना. ए बी सी डी ई, बी ए आर एस, बार्स ब्रो. सबसे पहले वॉल्यूम, सीए बनना है, सीए बनना है, वॉल्यूम पढ़ो तो सी माइनस ए करके वॉल्यूम आएगा. एक्सपेंस, कॉस्ट, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और एक नया आया कैलेंडर. उसमें भी ऐसा ही था, ए बी बी सी सेम था, सेम सेम, एवरीथिंग इज सेम. चलो ए माइनस बी, सो ए माइनस बी जो भी है लिख दो. बी माइनस सी देखो, बी माइनस सी देखना. बी इज 3.9, सी इज 3.8. देखो देखो देखो, बी इज 3.9, 3.8, सो 3.9 माइनस 3.8. वैसे तो पॉजिटिव 10,000 आंसर आया, लेकिन एडवर्स बोलने का. कॉस्ट वैरिएंस है ना, कॉस्ट बीसी उल्टा, फिर एफिशिएंसी सी माइनस डी. जो भी आप कर लो, ऊपर से देख के कर लो यार, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है. आई रिपीट, दिस नोट इज इंपॉर्टेंट. इफ आंसर इज पॉजिटिव फेवरेबल, इफ आंसर इज नेगेटिव एडवर्स, लेकिन कॉस्ट वैरिएंस के लिए उल्टा. मेरे दोस्तों इतना सिंपल मैंने, अच्छा इसका क्रॉस चेक भी है हमारे पास, क्रॉस चेक भी है. ये रहा, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर मिलके वॉल्यूम होना चाहिए. आप आंसर्स पीछे से देख लो, दिस इज द सेम क्वेश्चन एज देयर इन द इंस्टीट्यूट, और पीछे भी हमने सॉल्व किया है. स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं ये सिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों. इतना सिंपल है, इतना सिंपल है. सुनो 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 सुनो, ए बी सी डी
और इधर ABCDE, BARS, इधर BARS और ब्रो। कुछ नहीं है, फिर दोनों में है ना, सबसे पहले वॉल्यूम करो C-A। ये डेज बीने का समय, ये डेज वाला समय, सबसे पहले C-A, सबसे पहले C-A वॉल्यूम, और फिर इधर वॉल्यूम के बाद EC, इधर EC, ECC, AB, फिर B को नीचे लाओ, BC, CD, DE, AB, BC, CD, DE, EA। खाली इधर स्टार मार्क है, कॉस्ट वैरिएंस में उल्टा है। You are done. Guys, go through this video again and again, and believe me, I have made it very, very, very simple for you all. Okay, guys, so that's all in this video. Please share it with your friends. Okay, please share it with your friends. And यार like तो बनता है यार, comment तो बनता है. Come on, I have made it so easy for you यार. Okay, that's all in this video.